Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. So 11th children, you need to be focused more. You need to decide the course of action and just implement on that course of action. It will appear as if things are a bit difficult, but then once you will get into the depth of all the topics, I'm sure you will really enjoy every topic of every subject, because till 10th things were just very superficial. It's in 11th you really understand what this science is all about, what the physics is all about, what chemistry is all about, and really you will love it. So here we had started with, we completed with the first chapter, then we are heading towards the second chapter, that is atomic structure. Another very interesting and a basic chapter to understand chemistry in depth. So here we dealt with Planck's quantum theory. Till there we have done. We did about the discovery of cathode rays, anode rays, then we did about Rutherford's model, Bohr's model, then Planck's quantum theory. So I do hope that you have understood every single concept of the topic must be clear in your mind, and as such we will be practicing numericals here, very tough numericals we are going to practice in the live classes also. Many different types of questions we are going to practice there, as well as here also we are going to do some basic questions and some conceptual questions as well. So here another topic, it is based on photoelectric effect. Photoelectric effect, as the name suggests, photo means light, electric means it's related something with electrons. So suppose ये एक metal का surface है, metal है, just like in this way, I'll just explain you here. ये एक metal का surface है और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट है, मतलब मेटल के ऊपर लाइट की रेज पड़ रही हैं. लाइट इज फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल. देन व्हाट हैपन्स, एज सून एज लाइट फॉल्स ऑन द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. लाइट जब मेटल पे पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक emission. Photoelectric emission. So in simple terms you can say when light falls on the metal object, there is emission of electrons in response to that light, and this phenomena is called as photoelectric effect. Emission of electrons is called as photoelectric emission. अब जब लाइट यहाँ पे पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, लाइट के पास कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है. अब वो बहुत सारी एनर्जी है, एबंडेंट एनर्जी है लाइट के पास, तो उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर एमिशन. एक पार्ट लाइट की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन के एमिशन में यूज़ होगा, और जितनी एनर्जी बची हुई है वो हेल्प करेगी इलेक्ट्रॉन्स को घूमने में. मीन्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग, light is there, it has got some energy, say E. इस E जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें से एक पार्ट यूज हुआ इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन में. जितनी एनर्जी बची है दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टर्निंग राउंड, तो उसकी मूवमेंट में वो एनर्जी यूज होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी. So this photoelectric emission has got certain features. सबसे पहला पॉइंट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लाइट जब मेटल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है. सेकेंड इज दिस लाइट, you will find that the frequency of light will be proportional to kinetic energy. जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे.
सो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट है, हर मेटल की एक अपनी मिनिमम एनर्जी होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो सके। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई भी मेटल है और लाइट कितनी भी उस पर पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो गया। एक बेयर मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मिनिमम एनर्जी ऑफ द मेटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एमिशन, दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर मेटल की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अगर उससे कम एनर्जी वाली लाइट उस पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। सो द मिनिमम एनर्जी required for the emission of electrons is called as threshold energy. Then fourth point यहाँ पे है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा? लाइट तो गिर रही है मेटल पे, लाइट इज फॉलिंग ऑन द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। सो इलेक्ट्रॉन एमिशन विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज़्यादा होगा। मीन्स यू कैन से इन वन वर्ड्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. Kinetic energy of electrons will depend upon frequency of light. Every metal has got the threshold energy, that is the minimum energy required for emission. And as light falls on the metal surface, there is emission of electrons. ये 4 points आपको याद रखने हैं. And now we'll come to the formula which is needed for solving questions. ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें जो लाइट फॉल हो रही है, जो लाइट मेटल पे पड़ रही है, उसकी एनर्जी टोटल E है. एंड दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. उसमें से पार्ट ऑफ एनर्जी यूज हुई इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए और रिमेनिंग एनर्जी यूज हुई काइनेटिक एनर्जी के लिए. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था कि E इज इक्वल टू एच न्यू. सो ये हो जाएगा एच न्यू फ्रीक्वेंसी और ये है प्लैंक्स कांस्टेंट. थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए लिखोगे एच न्यू ज़ीरो, क्योंकि न्यू ज़ीरो मतलब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बेयर मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv². ये फॉर्मूला हेल्प करेगा हमको कैलकुलेट करने के लिए. या तो टोटल एनर्जी ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी होती है, या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है. इन सब में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. सो नाउ लेट अस मूव अहेड फॉर द क्वेश्चंस. यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड वैल्यूज़ के साथ में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, सीजियम मेटल है और उसका थ्रेशोल्ड, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 4.6 × 10⁻14 पर सेकेंड. सिंपल सा क्वेश्चन है फॉर्मूले को समझने के लिए, और इसमें हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस एमिशन. तो E इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो मीन्स ये हो जाएगा H की वैल्यू 6.63 × 10⁻−34 हमने किया हुआ है ऑलरेडी, और न्यू ज़ीरो मीन्स 4.6 × 10⁻14. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू as 3.05 × 10⁻19 जूल्स. ये सिंपल सा फॉर्मूला एप्लीकेशन है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन में हमको देखना है, पोटेशियम मेटल है और इस मेटल पे जब लाइट पड़ रही है, व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम, तब उसके पास टोटल फ्रीक्वेंसी इतनी है. मतलब लाइट फॉलिंग हैज़ गॉट द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है और हमको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी.
सो जब हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सो E इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हो जाएगा ये एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको सिंप्लीफाई करिए, इस पार्ट को हमको कैलकुलेट करना है, इसको आप लेफ्ट में ले आओ। एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मीन्स एच इंटू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो एच की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। न्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 24। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत टफ क्वेश्चंस हम लाइव क्लासेस में करने वाले हैं, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करेंगे एंड दैट विल मेक योर कंसेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस, like the video, subscribe the channel, press the bell icon so that we are there for you. We are there to help you out with more number of questions. So till then, thank you so much.